Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Globalization, which is the last chapter of the first book. And under this chapter, we have discussed about the concept of globalization, and then we have also discussed about various examples of globalization, which are actually the manifestation of globalization, how we see this globalization in our day to day life. कहाँ दिखता है हमें ग्लोबलाइजेशन होते हुए, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हमें हमारे सामने नजर आता है, दैट इज द मैनिफेस्टेशन. And then we have also seen that globalization, most of the time, many times it happens that people consider that globalization is concerned only with the economic aspect of the life, but actually this is not correct, because globalization is a multi-dimensional concept which includes not only economic but also cultural and political dimensions or aspects in itself. So in order to understand globalization, we need to understand all the aspects of the globalization. And now we are discussing the causes. What are the causes of globalization? And when we were discussing causes, we have seen that actually globalization is not such a process which is a phenomena. It's not a phenomena of the modern period. Actually, we have seen that from ancient time there was a flow of people, there was a flow of commodities, there was flow of ideas from one part of the world to the other part of the world. But we are talking about globalization nowadays. Something is different from between these two globalization, the globalization of ancient time and the globalization of modern time. Something is distinct about the present day globalization. What is distinct? The distinctness is the scale and size of globalization. जिस स्केल पे फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ हो रही है, जिस स्केल पे फ्लो ऑफ आइडियाज़ हो रहा है, जिस स्केल पे फ्लो ऑफ पीपल हो रहा है, जिस स्केल पे फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, उतने स्केल का फ्लो नहीं होता था. फ्लो था, इंटरेक्शन था, आना जाना था, एवरीथिंग वाज देयर, बट उसका स्केल बहुत ही लो था, स्मॉल था, उसका साइज बहुत ही स्मॉल था. एंड यही जो है वो यूनिक है आज के ग्लोबलाइजेशन में. जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, द स्केल एंड द साइज एंड द स्पीड ऑफ फ्लो. पहले भी कम्युनिकेशन होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, बट इट यूज टू टेक सो मच टाइम. People used to travel for months in order to reach a particular place. But अब स्पीड हमारी बहुत फास्ट हो गई है. We can reach to any part of the world within a few hours, है ना. We can communicate with any person who is sitting at the other part of the world within seconds. तो this is the speed. तो स्केल, साइज, स्पीड, ये सब जो है वो बढ़ गया है. एंड दिस इज द distinctiveness of the present globalization. And क्यों ये scale बढ़ गया? Why? The reason is we can't say that only one reason is there. Still, we can't say that the reason which I am going to tell, that is the only reason. But still, it is the most important reason, and that is technological advancement. जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ वो उसने ग्लोबलाइजेशन के स्केल को, साइज को, स्पीड को बढ़ाया. हमारे सामने टेलीफोन आए, टेलीग्राफ आए, देन इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब के कारण क्या हुआ कि हमारी जो कम्युनिकेशन का जो वर्ल्ड था उसमें रेवोल्यूशन आ गया. और इस रेवोल्यूशन का असर ये हुआ कि कनेक्टिविटी बढ़ गई, है ना. एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से, एक इंसान जो वर्ल्ड के एक पार्ट में बैठा है, एशिया में बैठा है, वो अमेरिका में बैठे इंसान से तुरंत कम्युनिकेट कर सकता है. तो दिस इज रेवोल्यूशन. द सेम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन द होल वर्ल्ड
faced when printing was started, when printing press was invented. एंड दिस प्रिंटिंग के कारण क्या हुआ था, आइडियाज जो लोगों के पास थे वो आइडियाज का स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके पहले भी आइडियाज स्प्रेड होते थे. अगर हम प्रिंटिंग को देखें तो दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना. और प्रिंटिंग के कारण आइडियाज का स्प्रेड हुआ. बट ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग के पहले आइडियाज स्प्रेड होते ही नहीं थे, उसके पहले भी आइडियाज का स्प्रेड होता था. बट वही बात है, स्केल बहुत स्लो था, है ना. तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वही चीज. तो प्रिंटिंग को अगर हम एक बार प्रिंटिंग की जो इम्पैक्ट था अगर उसको समझेंगे तो उससे हमें ग्लोबलाइजेशन को भी समझने में वी विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट. ओके. तो प्रिंटिंग के कारण क्या हुआ कि हमारा जो आइडियाज का स्प्रेड होने लगा, एंड दैट स्प्रेड ऑफ आइडिया वाज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन डिफरेंट कंट्रीज. जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग का आना जो है वो बहुत बड़ा उसके पीछे जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था वो था प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स, आइडियाज का स्प्रेड होना थ्रू दीज बुक्स. एंड बुक्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, है ना. तो ये जो जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से प्रिंटिंग आया, प्रिंटिंग से नेशनलिज्म की फीलिंग आई. द सेम थिंग इज देयर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो कम्युनिकेशन के मीन्स थे उसमें रेवोल्यूशन आया, एंड दिस रेवोल्यूशन कॉज्ड ग्लोबलाइजेशन. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन. बट here you must understand that it is not the only reason. It's not कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है. इट्स नॉट लाइक दैट. ये ग्लोबलाइजेशन अगर हो रहा है तो उसके पीछे जो रीजन है वो मेन रीजन ये है कि जो पीपल हैं they are the people who are living in different parts of the world, they are recognizing the interconnection with the rest of the world. In today's world, no one can live in isolation. ये हमारा कंपल्सन हो गया है. इट्स अ काइंड ऑफ कंपल्सन कि हम आइसोलेटेड होके नहीं रह सकते हैं. वी आर नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्शन. तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस की जो फीलिंग है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस ग्लोबलाइजेशन. इसलिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हम अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं. वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. द प्रेजेंट सिचुएशन विच वी आर एक्सपीरियंसिंग, द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, this is not epidemic, this is pandemic. Why it is called pandemic? Because it's not the disease COVID-19 is not confined to a single country. The whole world, almost most of the countries, almost all the countries are affected by this disease. तो इन दिस सिचुएशन ये जो हमारी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, इसमें हम आइसोलेट होके नहीं रह सकते हैं. इसमें अगर एक प्रॉब्लम एक जगह पे स्टार्ट होती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे होता है. द पैंडेमिक स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, वुहान, और ये आज के डेट में पूरी दुनिया जो है वो इसके चपेट में है. वाई? बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. हम सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं. पूरी दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है. ये पहले वाला समय नहीं रहा है. और इस कारण से, बिकॉज जो नेचर है प्रॉब्लम का, जो नेचर है दैट इज डिफरेंट. द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज वर्ल्ड वाइड. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन भी हमको पूरी ग्लोब को ध्यान में रख के करना पड़ता है. लाइक वी आर ऑल्सो हैविंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, लाइक ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है. देन नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, लाइक सुनामी आई. तो दीज आर नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, है ना. ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द होल ह्यूमैनिटी. it questions the survival of the whole humanity. So if we want to solve these problems, there is need to be interconnected. और ये जो हमारा इंटरकनेक्शन की जो नीड है
उसको हम समझ रहे हैं और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं. दैट इज द रीजन कि ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा है. एंड नॉट ओनली एनवायरमेंटल और डिजीज वाली चीज़ों को ही उसी में हमें इंटरकनेक्शन की जरूरत पड़ती है. बिकॉज अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन वन कंट्री, एक कंट्री में अगर किसी तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो दैट अफेक्ट्स मैनी कंट्रीज. और अगर वो एक कंट्री कोई पावरफुल कंट्री हुई तो उससे पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है वो अफेक्टेड हो जाती है. तो ये है हमारा इंटरकनेक्टेडनेस. वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दैट इज ऑल्सो द रीजन. तो इन कॉजेज what are the causes for the process of globalization? The first cause is technological advancement, especially in the field of communication. Okay, and the second reason is recognition of interconnection of people. ठीक है, these are the two reasons which need to be explained if the question is regarding the causes of globalization. And now we will see the consequences of globalization का क्या effect हुआ है. Okay, so as we have seen that the globalization is a multi-dimensional concept. Likewise, its consequence is also multi-dimensional. We have some political consequences, some economic consequences, and some cultural consequences. So first of all, we will discuss the political consequences of the globalization, of the process of globalization. So, political consequences. So, in this regard, we will see that what is the effect of globalization on the political system. And in this regard, first of all, we will see the impact or the consequence of the process of globalization on the capacity of the state. जो state है उसकी capacity पर क्या impact हुआ है because of due to globalization. And in this regard, we will see that the state, the concept of a state has changed. है ना? In the modern period, there is the concept of welfare state. Welfare state क्या होता है? The welfare state is that state which aims at the welfare of the people. The people are the focus, and all their basic needs must be fulfilled by the state. The state takes the responsibility of the well-being of the people. The state takes the responsibility of the welfare of the people, and because of this, what happens that the state, the power of the state
हैज़ एक्सटेंडेड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया हमारे. इफ़ वी सी क्या होता है कि हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में स्टेट इज देयर, बिकॉज स्टेट के काम बढ़ गए. स्टेट is there for the welfare of the people, and welfare of the people includes so many different aspects of life. तो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में स्टेट है. स्टेट इज देयर फॉर एवरीथिंग. तो ये क्या है? दिस इज इंक्रीज्ड पावर ऑफ स्टेट अंडर द वेलफेयर स्टेट. बट पहले अगर हम स्टार्टिंग जो मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग को देखते हैं, तो जो स्टेट था वो पोलिस स्टेट हुआ करता था. इन द बिगनिंग इट वाज पोलिस स्टेट. अब ये पोलिस स्टेट क्या होता है? पोलिस स्टेट मतलब स्टेट इज देयर ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री, एंड द सेकेंड थिंग इज द स्टेट इज देयर ओनली टू सिक्योर द बाउंड्री ऑफ द कंट्री. बस दो ही फंक्शन था. इंटरनली आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, और बाहर इंटरनेशनल जो उसके बॉर्डर्स हैं उसको वो सिक्योर करेगा. ओनली दिस टू फंक्शंस वर देयर ऑफ द स्टेट. और वैसे स्टेट को हम पुलिस स्टेट कहते थे. बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हुआ, और ये जो पुलिस स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बन गया, जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल जिसका एम होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एम द पावर ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज्ड इन मॉडर्न पीरियड. बट again what we find that because of globalization the power of the state is decreasing. The power of the state is eroding. erosion हो रहा है. स्टेट के पावर कम हो रहे हैं because of globalization, and again the state is moving to this police state. मिनिमम काम जो भी जिसको हम कहेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड जो फंक्शन है, ओनली those functions should be done by the state. State should not do so many activities. State is not required to be in all the aspects of the life of the people. This is because of the process of globalization. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? What is the reason behind it? इसके पीछे जो reason है वो है MNCs. Because जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो क्या होता है? वो MNC होता है. मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इनके थ्रू ही ग्लोबलाइजेशन होता है. और ये जो MNCs होते हैं ये इतने दे आर सो रिच. उनका जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो इतने ज़्यादा उनके पास इकोनॉमिक पावर होता है कि जो छोटे छोटे जो कंट्रीज जिसको हम कह सकते हैं, जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, उनके सामने वो टिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होते हैं ये MNCs. और बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक पावर दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, दे इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट. They want that the state should not interfere in all the aspects of the life of the people. State के काम को वो कम कर देते हैं और they start interfering, है ना. वो अपने हिसाब से लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं. बिकॉज जो MNCs होते हैं उनको जो बैकिंग होती है वो किसकी होती है? वो जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अमेरिका जैसे जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके जो MNCs होते हैं उनको उधर से सपोर्ट मिला होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं कि वो जो छोटी छोटी कंट्रीज में जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ के गवर्नमेंट को दे स्टार्ट कंट्रोलिंग. जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो उस MNC को ध्यान में रखते हुए, ना सिर्फ छोटे कंट्री बट कंट्री लाइक इंडिया, इन आवर कंट्री ऑल्सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर. मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि गवर्नमेंट पे ये प्रेशर होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अकॉर्डिंगली ही वो पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें, पॉलिसीज़ को उसी तरह से बनाएं ताकि जो MNCs हैं उनको प्रॉफिट हो,
उनके हिसाब से चीज़ें हों। तो अगर स्टेट को, अगर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इज बीइंग कंपेल्ड बाय दिस एमएनसी to make such policies which are beneficial for the MNCs, then what will happen? Then there will be erosion of the power of the state, and that is happening. So this is the most important impact of this process of globalization, that the government is not able to take decisions on their own. Whatever decisions are being taken by the government, that is according to the interest of the MNCs. मल्टीनेशनल कंपनीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के गवर्नमेंट डिसीजंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, बिकॉज द गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर. तो ये क्या है, अगर हमारी गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर, तो दिस इज द erosion of the state power. So we can अगर हम इसको एक पॉइंट का नाम देना चाहें तो we will write what is the first political consequence of the process of globalization. It is erosion of the capacity of the state. The first point is erosion of the erosion of the capacity of state. ठीक है. Now we come to the next point कि इसके अलावे what is the another political consequence of the process of globalization. So what we find is that on the one hand globalization causes erosion of the capacity of the state, है ना. स्टेट जो है वो एमएनसी के अकॉर्डिंगली काम करने लगी. बट on the other hand, what we find that because of globalization, there is increase in the capacity of the state in some respect. The capacity of the state has increased. Why the capacity of the state increased? Because of enhanced technology. Now the government is the advanced technology is accessible to the government also, है ना. तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, इसको गवर्नमेंट कई तरह से इट कैन यूज टू इंक्रीज इट्स पावर. लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशंस का होना. Because of technology, now the government is more resourceful in collecting information about the citizens. ये जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा स्टेट को अबाउट द सिटीजन्स, उतना ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल होगा, isn't it? The state will be in a more powerful condition to control its citizens if it is having more and more information. So states जो है वो because of new technologies but becoming more powerful. Like अगर हम इसमें एक allegation जो अभी के समय का जो context में I would like to tell you one thing. जैसे कि जो हमारा ये ऐप आया कोविड-19 के लिए, जो गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किया, आरोग्य सेतु. यस, आरोग्य सेतु ऐप. The app is really beneficial and a very useful app. But यहाँ पर एक allegation आया था from the opposition party कि this app is being used by the government in order to collect information of the citizens. ये एक allegation आया. It is not true. ठीक है, मान लिया this is not true. But ऐसा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि और स्टेट के पास जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसा हुआ या किसी और कंट्री में इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, तो ये कोई मतलब इट इज़ नॉट एन एग्जैगरेशन, इट इज़ हैपनिंग, है ना. तो स्टेट का पावर जो है वो बढ़ चुका है.
तो क्या हम देख रहे हैं, ऑन द वन हैंड वी आर सेइंग दैट द स्टेट पावर हैज बीन, द पावर ऑफ द स्टेट हैज बीन रिड्यूस्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जहां पर इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आती है वहां पर स्टेट के पावर कम हो गए, लेकिन जहां पर लोगों को कंट्रोल करने की बात आ रही है वहां पर स्टेट का पावर बढ़ गया। आज के समय में अगर हम देखें तो हमारी प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर मोबाइल दैट इज एक्सेसिबल। हम जो कुछ भी मोबाइल में करते हैं वो हमारा प्राइवेट नहीं है, वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो हमारी प्राइवेसी, अब आज के डेट में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इवन हम जो कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, और वो सर्च हमारे जो चॉइसेस हैं उसको डिफाइन करता है। एंड देन यू विल सी कि उसमें आपके सर्चेस में जो ऐड आते हैं वो उसी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली आते हैं। जो आपके सजेशंस आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, जो गूगल में न्यूज़ आता है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर सर्चेस। वॉट एवर यू आर सर्चिंग इन गूगल, सब कुछ उसी हिसाब से डिज़ाइन हो जाता है। क्यों, कैसे? बिकॉज हमारी प्राइवेसी नहीं रही है। वी आर नॉट इन सच ए कंडीशन कि हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने मोबाइल में वो सिर्फ हम जान रहे हैं। दैट इज नॉट द केस। तो ये हमारी, जिसको हम कह सकते हैं, हमारी प्राइवेसी कम हुई है, और स्टेट अगर चाहे तो इसको वो किसी भी तरह से यूज कर सकती है। स्टेट हैज बिकम दैट पावरफुल। तो ये दो चीजें हम जो जिसको कह सकते हैं कि विच आर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, बट दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, है ना, साथ साथ दोनों चीजें हो रही, बट रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। एक है इकोनॉमिक पॉलिसी के में हमारा इरोजन हो रहा है, और सिटीजन्स के कंट्रोलिंग में पावर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो जो सेकेंड पॉइंट होगा वो हम कहेंगे कि द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज्ड इन सम respect of, in some aspect of life. Okay, so our second point will be we can write the first consequence, erosion of the capacity of the state, and the second point is increase in the capacity of the state in some respect of life. Okay, so these are the two political consequences of the process of globalization. And now we come to the next consequences, and that is the economic consequences, which are the most important consequence of the process of globalization, because we have seen that many times it is considered that globalization has only one aspect, that is economic. तो ये सबसे important consequence है globalization के process का। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो वहीं से जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज व्हाट वी फाइंड कि जब हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं तो हमारा जो अटेंशन है, दैट अटेंशन गोज डायरेक्टली टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड किस तरह से ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF जैसे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं
how they are playing the role in determining the economic policies of various countries of the world. As I told you, with the disintegration of the USSR, everything started because in that because of disintegration of the USSR, it was decided that the capitalist economy is the winner, है ना. तो उसके बाद से ही ये ग्लोबलाइजेशन का जो हम स्केल बहुत जो बढ़ा, उसके बाद से ही बढ़ा, बिकॉज देयर वॉज देयर वॉज प्रेशर फ्रॉम WTO एंड IMF टू डिफरेंट कंट्रीज की वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करे. ठीक है, तो ये है, इट इज देयर, but it's not ki only economic globalization is only about the role of the IMF and WTO. There are many more things other than these two or other international organizations when we are talking of economic globalization. तो हम लोग कल की क्लास में we will see कि what do we understand by economic globalization, and then we will see the consequences of this process of globalization in the economic life of the people.